Hi everyone, welcome to Go Classes. So I am Pragati, and my rank in GATE CS 2026 was 285, and now I'll be joining IISc Bangalore for MTech CS. I hope that you all are going good with your preparation, but whatever doubt or confusion you have or any clarity you need, I'm here to help out you all and discuss with you all, so we can let's try to make the most of this time like we always try to do. So you can go ahead, raise your hands, and we'll discuss one after the other. Yes, Sahil, you can ask the question on chat as well. Meanwhile, if any of you all want to ask something, then just raise your hand and we will go in that sequence. Am I audible, everyone? Okay. So, no questions so far. All of you who have joined, do you have anything to discuss? It could be anything, whatever blockers you have. Hello, Okay. ma'am. Good evening. Okay, just a second, Ankan. I'll just take this question which is there in chat first. Let's start with it. So I started my GATE prep roughly 2 months ago and completed EM and OS till now. How should I complete my syllabus on time, and by what time you suggest I complete my syllabus, and how to skip long lectures like DBMS, etc. Okay, so firstly, like this word that I see towards like the last line, that how to skip long lectures. So you don't really have to skip anything. Like there are 10 subjects, and I feel like all completing all those 10 subjects is important, so you can't pretty much skip anything, right? And like as a personal preference, I still find DBMS way more interesting than the core subjects, like when you come to computer organization architecture and computer networks. So these also have very lengthy lectures, right, when we'll come to compiler and all those subjects. So DBMS is still, I would say, a bit fun. That's definitely a personal choice. But you cannot skip these long lectures. What you have to do is that, since you just started 2 months back, right? So I mean, you now it's high time. You have to increase your focus. You have to sit for longer hours. You have to keep away all your distractions, because skipping lectures is not an option. And definitely, because when you get that much of intuition, like in every subject, all everything is very intuitive. It's not anything that it could be summarized for you to just mug up or learn important pointers. It's something that's it goes so much beyond gate. Also, you will remember these things in your entire journey with which you will have with computer science. So that won't come easy. You will have to give that time, and it's not a lot. I think you just have just the sufficient time to complete the syllabus. For completing syllabus, I would suggest that, since you have done maths and OS, so if discrete maths is left, right, so I would suggest you to not complete it in one go, that you sit and just try to finish discrete maths before going to another subject. Neither do you have to keep it to the last, that you will start discrete maths after completing the entire syllabus. It has many topics which are not really interdependent. So you start with the core subjects, take it one at a time. So make it a target to complete the syllabus along with all the PYQs by November. That should be your target, at max. Because you have done approx 2, so almost 8 subjects are left. So I mean, I would have ideally liked a bit more context as per what year you are in or anything, because it does change things a little bit. So can you tell if you are in third year or final year, or you're done with college already? Because I feel like if you are doing just a second,
Okay, so yeah, that's pretty sufficient time, right? And since you are a dropper, you'll have all the time by yourself, right? So now, if you have done BTech in CS, like I think that you will find C and DSA, a bit easier than the rest of the subjects. So I would suggest you to start with the core subjects first, which are lengthy because since you're facing difficulty in focusing, right? So the only way is to pick up a subject and go through it. So I would suggest you to take two subjects at a time. You could be taking, say, you can take DBMS, right? One could be DBMS. Another you can start with maybe digital logic or COA. So take two subjects at a time because when there are lengthy lectures and you study the same lengthy in-depth subject for 2 to 3 days, then you might feel a little bored. So you can do not bored, but sometimes the focus gets reduced. So after 3 to 4 days, when you feel burnt out, then you can pick the next subject for the next 3 to 4 days, right? Should I increase my daily hours? Currently I'm doing DBMS. Okay, so DBMS plus CN, yeah, so you're doing two subjects at a time. That's good. So firstly, I would say, instead of just focusing on the number of hours, try to make a target that you have to finish maybe this DBMS and CN by 15th of July. So with this target, you have to study now, and it's not just that you have to rush through the lectures. You can maybe try increasing the speed a little bit for the lectures. Do not make notes. And so you're not making notes now, you are increasing the speed of the lectures. I feel like one, like it's not that hard to increase the speed, you will still understand. So that also helps. So now when you're doing the lectures, you just have to understand it, and at the back of the mind, you know that your target for completing these two subjects is approaching, right? So it's very important to have a target. Now that's the wider goal, that you have to complete 10 subjects by November. So for that, you have to plan it out, that you have done two subjects. So now how many subjects you have to complete by what month. So when that pressure will come, automatically your time will be adjusted accordingly. And I would say that now that you're sitting for 9 hours, make sure that there is a like majority of the portion should be for completing the lectures, of course, because most of your syllabus is still left to do, right? But still take out maybe at least 2 hours a day for solving PYQs of the two subjects that you've done earlier, and for revision also. Now say if you've completed DBMS, now that would be a time you would probably want to revise operating system once. So completing the syllabus by November means that you have completed the lectures for all subjects, done the PYQs, and also revised the long notes for all the subjects. So time, of course, if possible, then you should definitely be increasing. But that, for like, there are two important things. Firstly, you should make sure that when you're sitting, it's not that you're just barely sitting and you're burnt out, then it will take you longer to understand things. So don't like force yourself to sit for 14 hours. Try to if you set a target and then try to focus just on the target without thinking how many hours you are giving. It's obviously difficult to not see these things, but try to just think about how much syllabus is left and what's the deadline. Then automatically you will start sitting for longer hours, and it will happen automatically only. So if you feel that there are any so these are the basic pointers. So if you feel there are any distractions, then definitely get rid of those. Initially it would be harder, but slowly you will be able to focus more on yourself. Okay, it will come naturally to you. So sitting for longer hours definitely recommended, because it's not that there is a lot of time, it's way less than a year also. And since most of your subjects are completing, right? So I would say for the two subjects you're doing, set a very strict timeline that maybe in the next 15 days you have to complete these two subjects, and make sure to solve PYQs for the subjects you've already completed. That would be my recommendation. Okay. All right. Someone was asking a question earlier. Yes, ma'am. Yes, hi. Good evening, ma'am. Yes, good evening. Yeah, ma'am. So I am a NIT Durgapur BTech graduate, BTech Computer Okay. Science student. I had Hmm. passed out in 2021. Right now, All I am right. working in SBI, and Okay. after that, I am giving around 5 to 6 hours per day. On weekends, Hmm. it is around 8 to 10 hours. Okay.
But I already started in front. I have a CIL, Coal India Limited Management and Systems exam. That exam Okay. also similar the GATE syllabus. So Okay. I am preparing for both of the exams. All So right. what should be the suggestion to boost my scores or to give some good advice according to you? So, I mean, first, like the other exam that you mentioned, I don't know the syllabus for it, or I don't have any information regarding that. So, how many subjects have you completed with respect to GATE CS, like out of I the had 10 subjects? completed OS and DBMS. Okay, so two are done. Have you done these with PYQs or the lectures? I have done the lectures, and after that I have done the PYQs also. And Okay, basically, I had a little bit knowledge about all the subjects because I had prepared for GATE right. earlier, but I Right. hadn't given it. So right now, Okay, so for you, like I would say that you have done two subjects, right? So now for the remaining ones, to score well in the exams, the only thing is that you have to understand the lectures, because whatever information, whatever knowledge that you need for your exam, everything is there in these lectures, right? In the modules. So the first focus should be that you complete all the lectures with proper understanding. Right, that's the first step. right? Second would be that you make sure to revise everything, because honestly, things are not very tough. It's not like it will take you a lot of time, or it's very extremely tough. Like if I compare to uh, JE mains or advanced, I would say. So the syllabus is also very lesser compared to that, and it's easier to understand also, I would say. So compared to that, it's pretty easy. It's just that there are a lot of topics. So just revision is one thing, that you have to remember everything. So that's the second part. Like once you watch all the modules, you have all the correct and sufficient information that you need to crack GATE and any other exam that's similar to GATE, right? So after that, you have to make sure that you are revising it timely. Now there's no fixed duration that after 10 days or 20 days, but whenever after, you will get a feeling that I don't remember the subjects I had done 2 months back. So make sure you revise them well in advance. Like by November, try to revise every subject once or twice at least. And then the other thing is that once we have done the syllabus, now even if we complete everything, Huh. if we can't do well in exam if we haven't practiced questions enough. So I would suggest not do PYQs along with the modules when you're solving or doing a particular subject, because see, once there are many PYQs and questions that are covered in the module also. So just do those when you are doing a particular subject, and once you complete like 100% of that subject, like all the lectures, and then you move to the next one, then you start with the PYQs of the previous subject and do it topic wise. So even if you don't remember that subject, it won't be very messy. Like if you start with the topic, you will have a structure. Like you are watching lectures for maybe 3 hours a day, and 1 hour you have kept for PYQ solving, 1 or 1.5 hour. So now if you're doing it topic wise, you would know that maybe you can give half an hour for revision of that topic, and then you do PYQ. So that will bring structure to your revision, and you will be able to revise also topic wise, and you will have an understanding, like you will get to know your understanding for topic wise of the subjects you have covered. So for, if for a particular, maybe in if you have done maybe DBMS, if you have done, right, and you are able to solve questions of SQL, but not for normalization. So now you know which lectures you have to focus on more, or which notes you have to revise. So do the PYQs properly, topic wise, after you have completed that subject, and parallelly also do the next subject, because as I said, there are many subjects and a lot of topics in those. Now about the other exam you were mentioning, since I'm not sure about it, but I can say that since I was preparing for, like with GATE, there are many PSUs like ISRO, BARC, and all of these conduct exams of their own as well. And for them, I would say, since like the syllabus is exactly same like GATE, just maybe one subject was extra, like software engineering in these cases for PSU exams. And whatever subject is overlapping, like if there is OS in both the syllabus, then if you have done
that subject from Go classes, right? So there is nothing you are missing out on. So agar if the syllabus is overlapping, then you don't have to worry about the different types of questions that would be asked in that exam. Just prepare for gate, and that exam I it will also good. Now if there's anything extra in it, then you'll have to see how much time to give to those subjects and what's your priority, because I think it's best if you just focus on one thing, as per me. So for revision, to summarize, basically you just do the module, just focus on completing the modules, and just assure yourself that if you have seen all the lectures and you do PYQs, and towards the end you have to definitely solve mock test also. So these things will give you the best or top notch knowledge. Now again, if you how to do good in exam, so these are again, this is a foundation, but you need to solve the subject wise test and topic wise test, the weekly quizzes. These questions are of very nice quality, and to get a rank, solving these questions is a must. I would say even if you have done 100% of the modules, all the PYQs, even then I would say that won't assure you the rank. But if after doing these you do subject wise test also from the test series, if you do subject wise test, topic wise test, and mock test, even if you do like 5 to 10, not 5 but like maybe around, even if you do 10 mock tests, that would also be sufficient. Now as many as you are able to do, that will just improve you further, right? And in these questions again, just to give you an idea, so when you are doing weekly quizzes and subject wise test, all of these things, you will not be able, most probably you will not be able to get very good marks. Like it's maybe you won't be getting 70-80% marks in the first go, you might be only getting 30% marks, but that doesn't matter, because these questions are for that purpose only. These questions are designed only so you can learn from it. It's not to test your knowledge, it's only to add to your knowledge. So that would be the sequence: modules, PYQ, revision, and then as many tests as you can possibly give. Thank you very much, ma'am. And ma'am, another thing, All as you right. had already Yeah. mentioned about Bark Yeah. and ISRO, right? ISRO DRDO. So Yes. I want to know, do you know NTRO NTRO had released their notification every year, or that is something non-regular? No, I'm not sure about this. I haven't heard of it. Okay, ma'am. Okay, Sorry. okay. Yeah. Thank you very much, ma'am. All right. Welcome. Hi, Pranshu. You can ask your question. Good evening, Didi. First Hi. of all, many congratulations for ISC. Thank you. मैंने लास्ट ट्यूसडे जो आपका सेशन गया था उस टाइम मैं क्वेश्चन पूछ नहीं पा रहा, तो Hmm. मैंने अपने 3 डाउट लिख रखे हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहला Okay. डाउट तो है कि जैसे मैंने इस बार गेट दिया था पर मेरे 35 मार्क्स Hmm. आए हैं, तो अब Okay. मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। और Okay. मैंने मार्च से स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन, बट Hmm. बीच में कॉलेज की वजह से या फाइनल प्रोजेक्ट की वजह से मेरे 2.5 मंथ्स वेस्ट हो गए। तो अब मैं दोबारा Okay. से, कॉलेज खत्म हो गया, मैं दोबारा से ट्रैक पे आया हूँ। और Okay. अब मैंने अभी 1 जून से दोबारा स्टार्ट किया है। और मैंने अभी जैसे Okay. CN और TOC कंप्लीट कर लिया, तो मैंने उसका टेस्ट कौन से दिया। सब्जेक्ट्स किए? CN TOC और एंड TOC कंप्यूटर नेटवर्क। ओके। हम्म। तो मैंने इनके PYQ सॉल्व करे, तो मेरे से ऑलमोस्ट 60 to 70% PYQ हो गए। बट फिर ओके। मैंने जब गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज दी, टेस्ट हम्म। दिए सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज, तो उसमें हम्म। मेरे जो मार्क्स आए वो 50% भी नहीं आए थे, 30 to 30% मार्क्स आए थे हर टेस्ट में। तो हम्म। मुझे एक बार को लगा कि प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए और किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हम्म। ले लूँ। और तो हम्म। मुझे बहुत मतलब ऐसे बहुत एंजाइटी सी हो रही है कि मैंने सिर्फ PYQs हो गए हैं तो फिर टेस्ट में मार्क्स क्यों नहीं आए, और फिर अब सिलेबस कैसे कंप्लीट हम्म। होगा अक्टूबर एंड तक, क्योंकि अभी हम्म। बस 5 मंथ्स बचे हैं अक्टूबर तक। ये 3 डाउट थे। ओके सी, तो आपने बीटेक करी है कौन से स्ट्रीम से? कंप्यूटर साइंस। ओके सी, तो इफ यू हैव डन, पहले तो आपने सीएन और टीओसी करा है, ये दोनों ही लाइक कोर सब्जेक्ट्स है, राइट? तो
आपने 8 में से अभी तक 2 सब्जेक्ट्स भी कर लिए तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। क्योंकि आई विल टेल यू, अगर 10 सब्जेक्ट हैं तो अगर आपको मेबी अगर थोड़ा-सा वरी करने की ज़रूरत भी है, तो वो ये होना चाहिए कि आप अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे, एंड वरी नॉट इन द सेंस कि आप पैनिक कर रहे हो, बट इन दैट सेंस कि आपको प्लान करना पड़ेगा कि आपको कितने सब्जेक्ट्स कब तक फिनिश करने हैं। तो आपने सीएन एंड टीओसी कर लिया, आई थिंक रिमेनिंग 8 सब्जेक्ट्स जो है उसमें से सी एंड डीएसए करने में आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उसमें इतना कुछ याद करने वाला नहीं है, ना ही कुछ इतना न्यूमेरिकल है, राइट? तो ये 2 सब्जेक्ट्स हो गए, एंड एक मैथ्स है, तो वो अगेन आप टॉपिक वाइज़ करते रहना। अगर जैसे आपने ये 2 सब्जेक्ट्स कर लिए, तो नाउ मे बी आप लीनियर अलजेब्रा कर लो, या फिर कोई एक टॉपिक कर लो, फिर कुछ एक सब्जेक्ट के बाद फिर प्रोबेबिलिटी कर लेना, फिर कैलकुलस छोटा है तो मे बी उससे स्टार्ट कर सकते हो। तो बेसिकली मैथ्स आप टॉपिक वाइज़ करते रहना। इकट्ठा अगर आप मैथ्स शुरू करोगे तो एक 1 डेढ़ महीने में आपका सिर्फ एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, जो कि मेंटली थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है टू थिंक कि आपने इतने टाइम में एक ही सब्जेक्ट किया। सो दैट इज़ द फर्स्ट एडवाइस फॉर यू कि मैथ्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके करना, एंड सिलेबस वाइज़ यू आर फाइन, राइट? जस्ट मेक श्योर कि अब आप प्लान कर लो कि 5 महीने हैं, तो आप 2 सब्जेक्ट पर मंथ का टारगेट बना के चल सकते हो। 2 सब्जेक्ट पर मंथ में आप एक टफ ले सकते हो, एक ईज़ी ले सकते हो, कि मे बी सी प्रोग्रामिंग के साथ कोई बड़ा सब्जेक्ट कर लिया, और ऐसे करके, राइट? ऐसे प्लान कर लो। नाउ द सेकंड थिंग व्हिच यू मेंशन्ड अबाउट पीवाईक्यू, सो आई फर्स्ट गो में जब आप 10 सब्जेक्ट कंप्लीट करते हो, तो पीवाईक्यूज़ करना भी इतना ईज़ी नहीं होता। बट अगर आपसे 65-70% क्वेश्चंस हो रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको सब्जेक्ट स्टिल समझ आ गया है, ठीक है? और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, वो आप सॉल्यूशन देख के भी समझ रहे हो, तो इट मीन्स कि अगर आपको सॉल्यूशन भी समझ आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आपके पूरे सर के ऊपर से जा रहा है, या फिर वो टॉपिक ही आपका ब्लैंक हो गया। अगर ऐसा नहीं है, आप सॉल्यूशन देख के यू फील कि हाँ, आई न्यू दिस, तो दैट इज़ फाइन। ओके, तो बट स्टिल आपसे पीवाईक्यू, आई वुड से अप्रॉक्स 70% आपसे पीवाईक्यू बन जाने चाहिए। एंड कमिंग टू द टेस्ट सीरीज़, तो आई वुड से कि 50% नहीं, अगर आपसे 10% भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, बिल्कुल किसी टेस्ट में आपसे 0 मार्क्स भी आ रहे हैं, तो दैट डज़न्ट मैटर। टेस्ट का आपको बेनिफिट ये नहीं है कि आप टेस्ट देके उसमें फुल मार्क्स ले आओ या 80% स्कोर करो। टेस्ट का बेनिफिट ये है कि आप जो 45 मिनट्स उसमें दे रहे हो, राइट? तो वो सारे क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी होते हैं। तो 45, एक तो 45 मिनट्स आप बैठ के जब ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आप उस टाइम में पैनिक करने की जगह अपना बेस्ट देने का ट्राई करो। जो भी आपके पास नॉलेज है, आप उससे ट्राई करो कि कैसे इसे अप्लाई करके मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। क्योंकि जब आप बैठोगे ना, 45 मिनट्स के ही होते हैं आई थिंक टेस्ट, 15 क्वेश्चंस होते हैं। तो जब आप बैठ के वो सॉल्व करते हो, तब आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी बिल्ड होती है। अब वो ऐसा नहीं है कि 1 महीने में या 2 महीने में या एकदम से बिल्ड हो जाएगी। इट टेक्स टाइम ओवर, आई आई वुड से कि पूरा एंड तक वो हर थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूवमेंट ही होगा। एंड इट डज़न्ट मीन कि आपने सीएन का टेस्ट दिया, तो उसमें आपने अपनी स्किल्स डेवलप की, तो अब सीओए में सब अपने आप बनने लग जाएगा, राइट? बट आप सीएन के ही क्वेश्चंस कर रहे हो, सपोज कंप्यूटर नेटवर्क के कर रहे हो, तो जब आप उस 45 मिनट्स में अपना ब्रेन पूरा यूज करते हो, राइट? तो आप उसमें कुछ स्किल डेवलप कर रहे हो, विच यू माइट नॉट थिंक तो कि आप कर रहे हो, राइट? तो आप जब टेस्ट खत्म हो रहा है, उसके बाद सारे 15 क्वेश्चंस का आप उसका आंसर देखो कि ये सॉल्व कैसे हुए, और उसको आई वुड से कि आप 3 कैटेगरी में डालने का ट्राई करो। फर्स्ट इज़ कि आप वो टॉपिक ही भूल गए थे, आपको याद ही नहीं था, राइट? तो दैट मीन्स कि आपको रिविज़न करने की ज़रूरत है। सेकंड कैटेगरी इसकी आपको मतलब व्हेन यू लुक एट द सॉल्यूशन, तो आपको समझ आ रहा है, बट आप उस डायरेक्शन में सोच नहीं पाए। तो दैट आल्सो मीन्स कि यू हैव टू कीप गिविंग दीस काइंड ऑफ टेस्ट, ताकि आपकी इवेंचुअली वो स्किल डेवलप हो कि अगर कोई न्यू टाइप का क्वेश्चन आ रहा है जो आपने कभी नहीं देखा हो, तो आप उसको अप्रोच कर पाओ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें सॉल्यूशन देख के तो समझ आ जाता है कि अच्छा, हमें मे बी इस फॉर्मूला को ऐसे मॉडिफाई करना था या फिर ये करना था, बट जब हम कर रहे होते हैं क्वेश्चन, तब हमें वो क्लिक नहीं करता। बट दैट इज़ फाइन, क्योंकि आप जितने भी, अगर आपने 15 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, आपसे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हुए। बट अगर आप बचे हुए 13 क्वेश्चन को ढंग से एनालाइज़ करोगे, तो वो जब मेन एग्ज़ाम में आएगा, तब आपसे गलती नहीं होगी। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप अगर इतने टेस्ट दे रहे हो, राइट? मतलब सारे सब्जेक्ट वाइज़ और टॉपिक वाइज़ टेस्ट नहीं हो पाते, बट आप जितने अपने एंड से मैक्सिमम दे पाओ, इसके बाहर से आपके गेट एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा, राइट? अगर आप अभी मैक्सिमम करके देने की कोशिश कर रहे हो। तो इन टेस्ट से डिमोटिवेट मत हो। इनके द मेन थिंग इज़ कि आप हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के समझो कि अप्रोच देखो ये हुआ कैसे था। ठीक है, उसके बाद सेकंड टाइम आपसे गलती नहीं होगी, और थर्ड कैटेगरी इसकी आपको ये चीज़ पता ही नहीं थी। तो आपने अगर कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखा है, कुछ थ्योरेटिकल गैप था जो मिसिंग था, आपको लेक्चर से समझ नहीं आया था, तो वो चीज़ आप अपनी नोटबुक में लिख के रख लो कि ये एक न्यू मेथड था, ये न्यू फ़ॉर्मूला था, ये न्यू टॉपिक था,
जो आपको नहीं पता था, बिकॉज ये आपको रिवाइज करना होगा आगे जाके। सो और सिली मिस्टेक्स तो लाइक अगेन वो भी होंगी कुछ, तो यू हैव टू सी कि आपसे क्यों गलती हो रही है, ठीक है, दैट्स वन थिंग। एंड अनदर इज कि ये आपको समझ आ गया राइट, दैट यस। आप राइट सिर्फ पीवाईक्यू से जज करो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरियसली नहीं होते मोस्टली, फर्स्ट गो में तो बिल्कुल ही नहीं होते। एंड आपने अभी प्रिपेयर करना शुरू किया है, आई वुड से ये स्किल आपकी 3-4 महीने बाद डेवलप होगी। जब आप मॉक टेस्ट फुल लेंथ मॉक देना चालू करोगे ना, तब आपने जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पे इतना काम किया है वो तब आपको उसका रिजल्ट शो होगा, वो भी धीरे धीरे होता है। सो इट्स नॉट वेरी क्विक। आपको सिर्फ एक चीज जो फोकस करनी है वो ये होगा कि आपको अपना टाइमलाइन सेट करना है कि आपका सिलेबस कैसे आप अक्टूबर एंड तक कंप्लीट करोगे, बिकॉज एटलीस्ट आपके पास जितना ज्यादा टाइम एंड में फुल लेंथ मॉक और रिविजन के लिए होगा, दैट वुड बी रियली नाइस। सो दैट्स द थिंग। एंड वन अनदर एडवाइस दैट आई लाइक टू गिव यू ऑल, इसकी जैसे जब हम लेक्चर्स देखते हैं तो हमें चीजें इससे समझ आती है क्योंकि सर हमें स्टार्टिंग से बताते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट था, इंट्यूजन क्या था उसके पीछे का, एंड यू नो क्या क्या अप्रोचेस हो सकती है और हम क्यों एक अप्रोच से क्वेश्चन करते हैं। दैट्स वाई हमें लेक्चर देख के चीजें समझ आती हैं। बट जब हम कोई क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ और हम डायरेक्टली गूगल कर लेते हैं, तो हमें उसका सोल्यूशन देख के अभी के लिए समझ आ जाएगा, बट देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो या तो हम भूल जाएंगे, या तो वो मॉडिफाई हुआ तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्टली गूगल करना इज ऑल्सो नॉट द राइट अप्रोच फॉर एवरी क्वेश्चन। सो डेफिनेटली पहले अपना एफर्ट दे के सॉल्व करो, और अगर नहीं होता तो भी आई वुड सजेस्ट कि गेट ओवरफ्लो पे आंसर्स देखना इज बेटर। क्योंकि कोई क्वेश्चन है ना, तो आई वुड से कि अगर आप डायरेक्टली गूगल सर्च करते हो तो मे बी आपको वन स्पॉट पे सोल्यूशन मिल जाएगा, ऐसे हुआ है। और गेट ओवरफ्लो पे कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है सोल्यूशंस देख के समझने में, उस पूरे नीचे का कमेंट और डिस्कशन जो चल रहा होता है। बट दैट इज बेटर, क्योंकि तब आप उसके आसपास की चीजें और कुछ भी उसमें मॉडिफिकेशन है वो सारी चीजें समझते हो। तो दैट इज डेफिनेटली मोर टाइम कंज्यूमिंग, बट आप उससे ज्यादा कुछ सीखते हो। तो इवन इफ आप कुछ नया ऐसे सीख रहे हो या कुछ क्वेश्चन है जो आपको काफी अच्छा लगा और आपको लग रहा है ये 2-3 बार आ रहा है एंड आपको अच्छे से समझ आया, तो आप भी गेट ओवरफ्लो पे जाके आंसर लिख सकते हो। सो यू विल ऑल्सो हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग जब आप कुछ एक्सप्लेन करते हो या प्रॉपर ऐसे डिस्कशन के थ्रू कुछ समझते हो, rather देन कि एक ही जगह सोल्यूशन दिया हुआ है। तो वो आपका एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। पहले खुद से ट्राई करो एंड एक डिस्कशन पैनल के थ्रू समझने का ट्राई करो, एंड देन फिर गूगल करना जब कहीं से आपको समझ नहीं आ रहा हो तो। ओके जी, एक डाउट ओके। और था। हाँ। जैसे आपने बोला कि अक्टूबर नवंबर तक ट्राई करना सिलेबस कंप्लीट करने का, हम्म। तो लाइक मैंने जो अपनी टाइमलाइन डिसाइड की थी उसके अकॉर्डिंग मे बी अगर अगर मैं अक्टूबर एंड तक लेके चलता हूँ तो मुझे हम्म। नवंबर से रिवीजन स्टार्ट करूंगा तो मुझे 2 सब्जेक्ट छोड़ने पड़ जाएं। और अगर नवंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट होता है तो फिर मेरे को फिर टेस्ट ही दिसंबर में स्टार्ट करनी पड़ेगी। बट तो मैं इसलिए आपसे डाउट मैंने ये डाउट आपसे इसलिए पूछा क्योंकि मैंने आपका पॉडकास्ट देखा था सर के साथ, तो आपने हम्म। बोला था हाँ। कि आपने अक्टूबर में जब टेस्ट दिया था तो आपको आप कहीं और से हाँ। प्रिपेयर कर रहे थे। फिर राइट। आपको गो क्लासेस का मिला था, आपने वहां से प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो आपने कैसे 3 महीने में स्टार्ट किया मतलब गो क्लासेस के साथ? हम्म। तो सी ऐसा कुछ एक तो सीक्वेंस नहीं है कि आप पहले सिलेबस खत्म करके, आई टेल यू, अगर आप पूरा सिलेबस अक्टूबर तक खत्म करके ये सोच रहे हो उसके बाद मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगा, दैट इज डेफिनेटली नॉट राइट। आप जैसे जैसे अभी अक्टूबर से पहले आपके एटलीस्ट 6 सब्जेक्ट्स 6-7 सब्जेक्ट्स आपके ऑलरेडी रिवाइज हो जाने चाहिए। लाइक अगर अक्टूबर तक आप जितने भी सब्जेक्ट्स कर चुके हो वो सारे आपके रिवाइज भी हो जाने चाहिए साथ में ही, क्योंकि रिवीजन में आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है। आपने अभी अगर 2 सब्जेक्ट्स कर लिए, राइट, सीएन और टीओसी आपने कर लिया है, अब आप इसके पीवाईक्यूज भी अगर कर चुके हो, तो अब पैरेलली न्यू सब्जेक्ट्स करो, पीवाईक्यूज चीजें पैरेलल में करने का ट्राई करो। ओके, तो आप नया सब्जेक्ट कर रहे हो, उसके पैरेलल में पहले वाले के आपने पीवाईक्यूज कर लिया। अब अगर आप पीवाईक्यूज कर चुके हो, मे बी अब आप स्टार्ट कर रहे हो डिजिटल लॉजिक और ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप ये दोनों के लेक्चर्स देखो, और रैंडमली मे बी किसी भी 2 दिन आप बैठ जाओ कि इन मे बी 2 या 3 दिन में मुझे सीएन रिवाइज करना है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा दिन फिर 3 दिन सीएन ही कर रहे हो, मे बी आप हाफ डे अपना नॉर्मल करो, बचे हुए हाफ डे के दिन और नेक्स्ट डे सुबह वाले हाफ डे के दिन, या अपने हिसाब से ऐसे करके यू हैव टू रिवाइज कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड टीओसी जो आप कर चुके हो, एंड उसके बाद फिर कंटिन्यू करो अपने करंट सब्जेक्ट्स के साथ। लाइक पैरेलली रिवीजन भी करो, पीवाई क्यू भी करो, ये सब कुछ पैरेलल में होना चाहिए, ताकि जब आपका सिलेबस खत्म हो इसके साथ आपके पीवाई क्यूज और रिवीजन ऑलरेडी हो चुका हो। दिस थिंग इज वेरी क्लियर कि अगर आप अभी साथ के साथ रिवीजन नहीं करते हो तो एंड में आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी, एंड इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल कि आप एंड में लाइक कर पाओगे। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू आर डिस्कसिंग इट राइट नाउ, क्योंकि
इसमें तो देर इज इट्स नॉन नेगोशिएबल, यू हैव टू रिवाइज इट अलोंग अभी प्रिपरेशन के। अगर सारे 10 नहीं तो एटलीस्ट आपके 4 या 5 तो प्रॉपर रिविजन के साथ कंप्लीट होंगे, पर सारे इकट्ठा आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। मीन्स मतलब एंड मुझे अभी हाँ। अभी पहला रिवीजन करना पड़ेगा, और अक्टूबर हम्म। तक जब मेरे 7 8 सब्जेक्ट हो जाएंगे तो 5 to 6 रिवाइज हो जाने चाहिए। तो उसके बाद अगर यस। मैं टेस्ट सीरीज दूंगा अक्टूबर एंड से, तो हम्म। अगर कोई सब्जेक्ट जैसे मैंने सीओए को लास्ट पे रखा है कि थोड़ा सा टफर और थ्योरेटिकल हम्म। सब्जेक्ट है, तो अगर वो नहीं हम्म। होते हैं वो सब्जेक्ट, तो मैं छोड़ सकता हूँ उनको, या फिर और सब्जेक्ट करने जरूरी है? सी नहीं, आप छोड़ नहीं सकते। सीओ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आई गेस 8 to 9, या लाइक यू नेवर नो, मे बी कभी 11 मार्क्स का आ जाए, कभी 7 मार्क्स का आ जाए, यू नेवर नो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। एंड आप सीओए तो नहीं, सीओए क्या, आई वुड से आप कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते हो। आप यू हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग नाउ। इसका ये है कि अगर आपके पास आपका अक्टूबर तक 8 सब्जेक्ट खत्म हो रहे हैं और आपका मे बी सीओए और डिजिटल लॉजिक बचा है, ठीक है, तो जैसे मैंने एंड में जब लेक्चर्स देखना स्टार्ट किया था, तो ऐसा नहीं होता कि आप डेली ही मॉक टेस्ट दे रहे हो, क्योंकि आप कितने मॉक टेस्ट दे रहे हो दैट डजंट मैटर, इट मींस इट व्हाट मैटर्स इज कि आप जितने दे रहे हो वो आप कितने अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हो। तो जब मैंने नवंबर में गो क्लासेस से पढ़ना शुरू करा था, राइट, तो मुझे दिन में ऑलमोस्ट सुबह से शाम तक मैं वीडियोस ही देख रही होती थी। बट एक दिन डिसाइड कर लो कि आप इस दिन मॉक टेस्ट दोगे, लाइक मेरा था कि मैं सैटरडे को या संडे को वीकेंड पे मॉक टेस्ट दे रही हूँ। तो उससे पहले वाले 7 6 डेज मेरे और मोटिवेटिंग होते थे कि मुझे संडे का मॉक देना है। तो उससे पहले मुझे एटलीस्ट ये सीओए में देखो 70% सिलेबस भी हो तो आप मॉक टेस्ट देना चालू कर सकते हो। ओके, और मैं ऐसा नहीं था कि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ सब्जेक्ट्स तो करे ही थे, बट मेरे फर्स्ट टेस्ट में मार्क्स बहुत कम आए थे, अराउंड 28 ऐसे कुछ मार्क्स आए थे, मेरे 30s में भी नहीं थे। तो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे पढ़ना तो पड़ेगा, एंड गो क्लासेस वाज अ वेरी नाइस रिसोर्स। तो अब मुझे पता है कि संडे को मैं मॉक दे रही हूँ, तो दैट वाज वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी कि मेरे पास 6 दिन है, इसमें मैं जितना कवर कर पाऊँ उतना मेरे लिए बेटर होगा, और जितना रिवाइज कर पाऊँ वो भी अच्छा होगा, क्योंकि मैं संडे का मॉक फिर अच्छे से दे पाऊंगी। सो उस वे में करना है आपको। आप मॉक टेस्ट आप डेली नहीं दे रहे होगे, आप हफ्ते में एक दिन से शुरू करोगे। अगर आप नवंबर से मॉक टेस्ट देना चालू कर रहे हो, तो आप नवंबर में एक ही दिन, आप नवंबर में सिर्फ 5 मॉक का भी टारगेट लेके चल रहे हो, तो दैट्स मोर देन इनफ। आपको ऐसा नहीं है कि हफ्ते में 2 या 3 दिन मॉक देने हैं। जितने ज्यादा दो ऑफ कोर्स इट्स गुड, बट सिलेबस कंप्लीट आपका हो जाना चाहिए। एंड आई वुड से लाइक इट्स प्रीटी मतलब लेट का स्ट्रैटेजी, अभी आप सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करो, बट जस्ट टू लेट यू नो, आप अगर एक दिन हफ्ते में मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो उस मॉक टेस्ट आने से पहले आप अपना, एक तो अगर कुछ पेंडिंग है टॉपिक, तो उसके लेक्चर्स देखो, क्योंकि लेक्चर्स कंप्लीट करना हर सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कोई सब्जेक्ट आप बिल्कुल भूल चुके हो, या फिर पिछले मॉक में आपके उससे क्वेश्चंस नहीं हुए थे, तो वो रिवाइज करो। उसके अलावा आपके अगर कोई सब्जेक्ट वाइज टेस्ट या टॉपिक वाइज टेस्ट बच रहे हैं, तो वो भी दो उसी बीच में, राइट। तो आपने एक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एक दिन में 2 3 दे दिए, वो सब एनालाइज किया, तो ये सारी चीजें इवेंचुअली आपको जो आप मॉक टेस्ट दोगे उसमें भी हेल्प करेगी। तो ये सारी चीजें पैरेलल में होती हैं, इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ मॉक ही दे रहे होगे और समथिंग। आप मॉक दोगे तो भी आपको रियलाइज होगा कि ये सब्जेक्ट तो मैंने किया ही नहीं है, ये टॉपिक मेरा वीक है, तो आप फिर उसके लेक्चर्स देख रहे होगे। तो ये जितनी चीजें होती है ना, दैट विल हैपन इन पैरेलल। इसलिए मैं कह रही हूँ उससे पहले, क्योंकि वो मॉक टेस्ट वाला टाइम बहुत हेक्टिक होता है, मोस्ट प्रोबेबली आपको सारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी तब देने के इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो द बेस्ट थिंग इज कि आप अभी लेक्चर्स देखो, और अभी इतने फोकस से देखो कि एटलीस्ट आपको उस टाइम पे वापस से लेक्चर्स पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे मेरा मेजोरिटी मेजोरिटी टाइम लेक्चर्स पे चला गया था उस टाइम पे। वो अगर मैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पे देती तो मेरी रैंक और बेटर आती। तो अभी आप जो लेक्चर्स देख रहे हो ना, जस्ट नो कि आपकी प्रिपरेशन का लाइक सबसे इम्पोर्टेंट एंड बेस फाउंडेशन वाला फेज है। तो आप जितने भी सब्जेक्ट्स कर रहे हो वो आपको समझ आने चाहिए, अभी सिर्फ उस पर फोकस रखो। एंड ये भी दिमाग में रखो कि आप कुछ स्किप नहीं कर सकते, आपको सारे सब्जेक्ट्स खत्म करने ही है विद लेक्चर्स। ओके, हाँ, राइट। थैंक और यू, रिवीजन समझ गई। प्लीज करते हुए चलना, एंड के लिए मत छोड़ना। एंड में यू विल एंड में आपको एनीवेज रिवाइज करना पड़ेगा, एक एक सब्जेक्ट आई वुड से 3 से 4 बार रिवाइज करना ही पड़ता है। तो अभी एक फुल रिवीजन तो करते हुए ही चलना। इट ओके। विल नॉट टेक यू मच टाइम। फर्स्ट टाइम में लगेगा आपको, मे बी 4 दिन भी लगे, बट उस वो आपको बेनिफिट बाद में पता चलेगा। जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना, और आपको तब रिवीजन में सिर्फ मे बी 4 की जगह सिर्फ 2 ही दिन लगेंगे, और आप तब ज्यादा टाइम क्वेश्चंस पे दे पाओगे, क्योंकि क्वेश्चंस करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो यस। ओके दीदी, आए। ठीक मेरे है। साथ दीदी बस एक ही हाँ। प्रॉब्लम हो रही है कि जैसे हाँ। कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो पीवाईक्यू हो जा रहे हैं,
बट जैसे कुछ कुछ हम्म। पीवाईक्यू होते हैं ना जो बहुत ट्रिकी होते हैं, जिनको मतलब बहुत यस। 90% हम्म। स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, मैं हाँ उनको हाँ। थिंक नहीं कर पाता, अप्रोच ही नहीं पहुंच पाता हम्म। until unless I see the solution. हम्म। सी बट दैट्स फाइन। तो ऐसे क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे ही, राइट? मेजोरिटी पीवाईक्यूज हो रहे हैं तो दैट्स गुड। अब आपसे जो पीवाईक्यू नहीं हुआ ना, उसे सर्कल करके रख लेना या कहीं पे मार्क करके रख लेना। और ये जब आप, जैसे अभी आपने सीएन और टीओसी करा है, तो जब सीएन और टीओसी के जो भी ऐसे पीवाईक्यूज जितने भी आपको ट्रिकी लगे हैं, उसे मार्क याद से कर लेना। तब जब आप आगे के सब्जेक्ट्स करो, जब आप सीएन और टीओसी रिवाइज करने पे आओगे ना, तब वापस से एक बार इसके पीवाईक्यू देखना और जो आपने मार्क किए हुए थे। एंड मे बी आप तब भी दोबारा भूल गए होगे, बट देन अगेन आप फिर इसका अप्रोच देखना कि ये कैसे हुआ था। और जब आप कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन देख रहे हो ना, तो डोंट जस्ट थिंक कि मतलब ऐसे सोल्यूशन देखा हो गया। एक बार खुद से क्वेश्चन पूछना कि ये सोल्यूशन आपसे क्यों नहीं हुआ था। यू नो, एज आई सेड कि अगर ये इसलिए नहीं हुआ था कि आप कोई टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं था, या फिर आप अप्रोच नहीं कर पाए थे, अगर आपको सोल्यूशन देख के समझ आता है, तो एक बार उसको इन डेप्थ सोचना कि हम मुझे ये चीजें पता थी, इस डायरेक्शन में मैं क्यों नहीं सोच पाया, या मैं कहाँ तक सोच पा रहा था और उस डायरेक्शन से इधर किस स्टेप पे आ रहे थे। मतलब थोड़ा बहुत ध्यान से आप उसका सोल्यूशन देखो जब कर रहे हो तो। एंड इट्स वेरी नॉर्मल, ऐसा सबके साथ ही होता है। 100% पीवाईक्यूज नहीं बनते हैं, बट द मेन, और इनफैक्ट सब टेस्ट भी नहीं होते अगेन, जो गो क्लासेस वाले टेस्ट सीरीज के होता है वीकली क्विज़ेस के। बट उसका पर्पस ही यही है कि आप उन चीजों से कुछ सीखो। वो सीखने के पर्पस से ही है। ये जो ट्रिकी पीवाईक्यूज है, ये भी इसलिए है कि आप उनमें से मैक्सिमम जितना सीख सकते हो उतना सीखो। तो उसके लिए आपको बस सोल्यूशन देखना है और मार्क करके रखना है, क्योंकि एक बार में नहीं आते। मेरे लिए भी ऐसे बहुत सारे पीवाईक्यूज थे जो मुझसे एक बार में नहीं हुए थे, और इनफैक्ट दूसरी बार करने पे भी नहीं हुए थे। बट ओनली थिंग एंड द ओनली की थिंग दैट विल लीड यू टू सक्सेस इज कि आप उसको गिव अप नहीं कर रहे हो। आप उसको जितनी बार आपसे नहीं हो रहा, आप उतनी बार समझ के कर रहे हो। आप अपना टाइम डिमोटिवेट होने पे मत लगाओ। अगर आप डिमोटिवेट होने की जगह आप बस उसका बार बार सोल्यूशन देखते रहो, बार बार जितनी बार भूल रहे हो उतनी बार करते रहो, देन इट विल हेल्प यू इन गेट। और ये सबके साथ ही होता है। सो यू आर नॉट गोइंग इन एनी रॉन्ग डायरेक्शन। आप जब तक पढ़ रहे हो और टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग गुड। Okay, thank you so much. यस प्रांशु, ऑल राइट। Hello, ma'am. यस, हाय ध्रुव। Yes, Andhru. Actually, I am a passed out 25 batch, and ओके। currently I am just focusing on the complete lecture. I will complete all the syllabus by end of the August month. Then, what should be my ओके। path to like attempt a test series or weekly quiz or PYQ onward September? So till now, how many subjects have you done? 10. Okay, so you have done most of it. And have you just like, have you seen all the lectures also? Yes, all the full gate oriented lecture. Okay, and PYQs? I have done PIQ which sir solves in lectures or some of externally, but not a full efficiently. I have done PIQ. Okay. So see, if you have already covered most of the syllabus, then what is left for you is, one is PYQs, like all the PYQs, right? So that's one. The next is revision, and the third thing is these test weekly quizzes and the test series. So what you can do is you can start with revision, I would say, and maybe you pick a subject, devise the theory. Uh, because I think the subject that you had started with, it's possible that you don't remember everything. So it's good that you won't have to see the lectures because you have done it like proper, the gate oriented one. So you revise it and then you solve the PYQs. Okay. And I would say that maybe you can take two subjects again parallelly, because just doing PYQs of one subject, revision and test, it gets boring. So revision ke time pe just pick one subject, but for solving PYQs you can uh, take other subject as well, maybe the one that you just complete. So agar aap last mein, if you're completing DBMS, so do the PYQs of DBMS, along with it start revising any older subject and solve its PYQs as well. So once you have done PYQs of at least like three subjects, I would say, like for at least 30% first, because PYQs are also important. So first revise, then solve the PYQ, and then while you do the PYQ for the rest of the subjects, parallelly start giving the test also, the subject wise test and topic wise test. So again, once you will revise the theory,
and then when you solve the PYQs, you will be able to solve PYQs also, because there is no point solving PYQs when you don't remember things and then you have to go back to your notes and the solution for every question. So first, properly revise the long notes. Don't give a lot of time. I would say 3 days maximum for revising a subject. That should be your target. Then the PYQs, then start revising some other subject, and PYQ of other subject, and parallelly do the test for the subject that you had just revised. So I would say that should be your strategy, because all we have to cover is notes, revision, PYQ, and then the test. Since you have already done the notes, that's really good. You have sufficient time to practice questions, and these questions, I would say, and the revision that you will be doing will basically decide your rank. And I would say that you have done really good if you have completed all your syllabus by August end. If you'll be able to do that, you have really good time for the question practicing and revision, which is again a major part of the preparation. So Okay, and what should I attempt first, test series or quiz? definitely the test series. In the sense, are you talking about full length test? No, subject wise test or quiz. You can, I think, for weekly quizzes, there it's once a week, right? So when does the weekly quiz happen? Is it Actually, one all quiz? the Huh. weekly quiz are available to attempt, so that's why I'm asking. Okay, all right. I would say, if you're is it are the weekly quizzes subject wise? Yes, Okay. I subject and mean, topic wise as well. okay. So you can start with I mean, I would say, because for me, majority of my tests were the subject wise test and the topic wise test, and the questions were really good. So again, if weekly quizzes are also of that kind, you can, I mean, I would suggest you can start with uh, the the topic wise test and subject wise test, right? Because Okay, I had great. personally done most of that. But you can give weekly quiz also. I mean, you will get an idea the difference between the type of questions, and you can decide for yourself. But the pattern would be revision, PYQs, and then these quizzes and tests that you will be giving. Okay, okay. Thank you so much. Yes, and once you're done with the PYQs for all subjects and the weekly and the test of around 5 subjects even, then you should start with the full length mock test. Okay, okay. Thank you so much again. Yes. All right. Okay, Dhruv. Hi, Aryan. हेलो गुड इवनिंग मैम। Yes, Aryan. Good evening. मैम जैसा आपने बताया था कि जो हमने पास्ट में जो सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं उनको हाँ, रिवाइज करना है पीवाई क्यूज के थ्रू। हाँ, लाइक अगर हमने उसको पीवाई क्यूज के थ्रू सॉल्व भी कर लिया है तो हाँ। क्या हमें उसके शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए? क्या आपने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए थे? और अगर हम उनके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो लाइक बहुत सारे हुँ, कंसेप्ट हैं जो सर अपने लॉन्ग नोट्स में पढ़ाते हैं, बट हुँ, वो कहीं ना कहीं कभी एग्जाम में आया है या फिर कभी नहीं आया, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हुँ। हमें अपने शॉर्ट नोट्स में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए कि वो कंसाइज भी रहें और परफेक्ट भी रहें, लाइक परफेक्ट Yeah. जैसे हो। See, I mean, maybe my answer would not be the perfect one, but I can share जो मेरे लिए, मतलब जो मेरा थॉट प्रोसेस था। तो PYQs तो इम्पोर्टेंट है ही, और उसके थ्रू एक रिविजन, एक राउंड ऑफ रिवीजन हो जाता है। बट दैट्स नॉट कि उतना रिवीजन काफी है। लाइक पीवाईक्यूज तो आपको करने ही करने हैं। अगर आप उसको टॉपिक वाइज करते हो तो आई थिंक वो ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है और आप ढंग से रिवाइज कर पाते हो सब्जेक्ट को। बट उसके अलावा जो लॉन्ग नोट्स होते हैं, राइट, जैसे आपने अगर नोट्स बना रखे हैं सब्जेक्ट के, या आप एनोनेटेड नोट्स रेफर कर रहे हो, आपको एनी हाउ वो रिवाइज करना ही पड़ेगा। अगर आप जो शॉर्ट नोट्स अगर हम बनाते भी है ना, तो आई वुड से कि वो टुवर्ड्स द एंड काम आता है। जस्ट एक फाइनल, जैसे कि गेट एग्जाम में भी 1 मंथ में एंड आपको बस एक क्विक गो थ्रू करना हो, बट उससे पहले आपको लॉन्ग नोट्स तो रिवाइज करने ही पड़ेंगे एटलीस्ट 2 बार। तो मतलब इट्स गुड अगर आप 2 बार कर पाओ, या अगर आपको एक बार में याद हो जाता है तो एक बार, या आप चीजें जल्दी जल्दी भूल रहे हो तो 3 बार, जितनी बार भी पॉसिबल हो। क्योंकि मेरे हिसाब से जब लॉन्ग नोट्स आप करते हो, तो फर्स्ट टाइम में वो काफी टाइम वेस्ट लगता है, और उसमें वो लेंथी प्रोसेस भी है। बट वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार जब हम लेक्चर देख के समझ रहे हैं, वो हमें लगता है ठीक है समझ आ गया। बट जब हम रिवाइज करते हैं ना, तो हमें वो खुद से, लाइक इवन दो वो लिखा होता है, हमें स्टिल सोचना पड़ता है प्रॉपरली कि ये हम इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे थे, या फिर ऐसे। तो वो इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग नोट्स का रिविजन डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद आपने एक बार लॉन्ग नोट्स रिवाइज कर लिए पीडीएफ से या नोट से, उसके बाद फिर से 1 मंथ बाद आप सेम सब्जेक्ट वापस से लॉन्ग नोट से देख के रिवाइज करो जब आपको लग रहा है कि आप भूल रहे हो। क्योंकि अगेन इतने सारे टॉपिक्स है कि आप शॉर्ट नोट्स में क्या लिखोगे दैट कैन बी कंफ्यूजिंग। तो मैंने मोस्टली लॉन्ग नोट्स ही रिवाइज किए थे जितनी बार भी रिवीजन किया था। एंड मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स तो मैंने मतलब 2 बार तो एटलीस्ट सारे रिवाइज किए थे और 3 बार भी किया था कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स का। एंड इन फैक्ट आई वुड नॉट से कि मेरे पास काउंट है क्योंकि मैं रैंडमली ही रिवाइज कर रही होती थी कि अगर मुझे दिमाग में लग रहा है कि मैं ये सब सपोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भूल रही हूँ, तो मैं बार-बार उसके टॉपिक रिवाइज कर रही हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि मुझे पेजिंग में डाउट हो रहा है, कभी रैंडमली तो मैंने पेजिंग वापस से पढ़ लिए उसके नोट्स। तो ऐसे आपको आई गेस लॉन्ग नोट से रिवीजन तो करना ही है एनी हाउ आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे। और शॉर्ट नोट्स के लिए आई वुड से कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऐसे फॉर्मूलाज और एनीथिंग, सी अगर किसी सब्जेक्ट में बहुत ही स्ट्रेट अप फॉर्मूलाज हैं जो कि आई वुड से मोस्ट ऑफ द चीज़ों में नहीं होते, बट मे बी आप जैसे सपोज डीबीएमएस पढ़ रहे हो, तो आप नॉर्मलाइजेशन का शॉर्ट में लिख सकते हो कि वन सारे फॉर्म्स को चेक करने का क्या रूल है, या फिर ऐसे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स है, बट मोर और लेस एनीवेज आपको पूरे जैसे अगर डीबीएमएस में आपने कर लिया, बट फिर कंप्यूटर नेटवर्क में इतनी सारी लेयर्स हैं, हर लेयर में इतने सारे अलग अलग फंक्शंस हैं, कुछ में न्यूमेरिकल्स हैं इतने सारे, तो आप सारी चीजें तो नहीं ही लिख पाओगे आई वुड से। तो लॉन्ग नोट्स तो रिवाइज करो ही, साथ में शॉर्ट नोट्स की जगह जो मैंने किया था वो ये था कि मैंने पीवाईक्यू सर्कल कर लिए थे, और या तो जब मैं पीवाईक्यूज के थ्रू कोई कॉन्सेप्ट सीख रही हूँ या फिर कोई क्वेश्चन जो मुझसे नहीं बन रहा और उससे मैंने कुछ सीखा हो या उसमें कुछ ऐसी ट्रिकी चीज आई हो, तो वो मैं अपनी नोटबुक में लिख लेती थी और मैंने वो रिवाइज किया था। सो फॉर मी इट वाज कि मैं लॉन्ग नोट्स रिवाइज कर रही हूँ और उसके साथ में मेरे पास एक एग्जाम से पहले या जब मैं मॉक टेस्ट दे रही होती थी तब मेरे पास एक नोटबुक थी जो मैंने नवंबर एंड दिसंबर में बनाई थी और उसी के थ्रू उसी टाइम में रिवाइज भी की थी। उसमें वो सारे क्वेश्चंस थे जो मुझसे मॉक टेस्ट में नहीं बने थे, तो उन क्वेश्चन से मैंने क्या सीखा था या क्या नॉलेज गैप था वो मैंने लिखा था। ओके, थैंक यू। यस, यस, यस। एंड अगेन लाइक टू समराइज कि आप शॉर्ट नोट्स अगर बना भी लेते हो तो भी आपका लॉन्ग नोट्स का रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट है, अनलेस एंड अनटिल आप कुछ लोग होते हैं शार्प कि आपने एक बार पढ़ा और आपको फिर याद रहता है, बट अगर ऐसा नहीं है और आप चीजें भूल रहे हो जो कि नॉर्मल ही है, वो होगा फर्स्ट टाइम में तो नहीं सब्जेक्ट्स याद होते, तो आप प्लीज ट्राई करना कि लॉन्ग नोट्स भी रिवाइज करते हुए चलो अभी से। ओके मैम, ओके, थैंक ऑल यू। राइट। ओके। हाय वैभव। हाँ, हाय मैम। यस। हाँ मैम, एक्चुअली मैं गो क्लासेस के नोट्स को फॉलो करता हूँ, लाइक क्लासेस को फॉलो करता हूँ। तो जो उनके जो ओके। शेड्यूल होते हैं, डेली डेली शेड्यूल जो होते हैं ना, हाँ। तो वो फॉलो करता हूँ। तो मैं मुझे ये डाउट था कि वो एग्जैक्ट सीक्वेंस मतलब क्या होना चाहिए, जैसे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाते हैं ना, लाइक 5 to 6 आवर्स का वो डेली प्रोवाइड करते हैं। तो हाँ। वो कंप्लीट होने के बाद का एग्जैक्ट सीक्वेंस कैसा रहना चाहिए, लाइक पीवाईक्यूज एंड बहुत सारी चीजें होती है, जैसे गेट ओवरफ्लो को कैसे मैनेज करना है, क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करना हाँ। है। तो वो शेड्यूल आपने कैसे डिवाइड किया था हाँ, तो ऑन सी द डेली डेटा। बेसिस, मुझे जानना है। यस, यस। तो सी जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी बिल्कुल, तब सिंस मैंने फर्स्ट 2 सब्जेक्ट्स उठाए थे, तो मेरे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम मैं सिर्फ लेक्चर्स ही देख रही होती थी और उसके बीच में जो क्वेश्चन्स आ रहे हैं मैं वो सॉल्व कर रही हूँ, इट वाज़ लाइक दैट। बट जब मेरे 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए और उसके बाद जब मैं नए 2 सब्जेक्ट शुरू हो रहे हैं, तो मैं दिन में स्टिल अब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लेक्चर्स पे ही जाता था स्टिल, कि मैं दिन में मेबी 6 घंटे लेक्चर्स देख रही हूँ। बट मैं ट्राई करती थी कि एटलीस्ट 1.5 आवर, है ना, मतलब इट वाज लाइक कि रात को मेरे लिए ऐसा होता था कि ऑफ लाइक इफ मैंने छुट्टी ली है या फिर ऑफिस से आने के बाद मैंने लेक्चर्स देखे 3 घंटे के, तो मतलब मेरा ऐसा था कि मैं अगर 7:30 वापस आ रही हूँ तो मैं 8 o'clock से आई स्टार्ट वॉचिंग लेक्चर्स, और अगर मैं 11 तक लेक्चर्स देख रही हूँ तो 11:30 से मुझे अब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो 2 सब्जेक्ट्स मैं पहले कर चुकी हूँ उनके लिए। एंड ये क्वेश्चन अभी पीवाईक्यूज है, क्योंकि फर्स्टली आपको पीवाईक्यू से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि आप पीवाईक्यू करोगे तो आपको समझ आएगा कि आपने जो लेक्चर्स देखे हैं वो आपको समझ आया है कि नहीं। उससे आप टेस्ट कर सकते हो खुद को, क्योंकि आइडियल सिचुएशन में आपसे पीवाईक्यू मोस्टली बन जाने चाहिए, राइट। और बन जाए, और अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे तो उसका रीजन ये होना चाहिए कि आप
मे बी वो चीज भूल चुके हो, तो वो टॉपिक रिवाइज करो और पीवाईक्यू कर लो। बट मोस्टली ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे वो लॉजिक ही नहीं बन रहा इवन दो आपको सब्जेक्ट याद है। तो ऐसे माय डे वाज लाइक कि मैंने लेक्चर्स देखे, उसके अलावा 1.5 घंटा एटलीस्ट मेरे लिए रहता था कि 11:30 से 1 o'clock तक मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ। अभी किसी दिन इफ मैं फ्लो में हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के एंड मैं और भी सॉल्व कर पा रही हूँ, देन आई यूज टू कंटिन्यू सॉल्विंग क्वेश्चंस। बट आपको फिक्स टाइम देना ही पड़ेगा कि इतने बजे मैं पीवाईक्यू सॉल्व करने बैठूंगा, क्योंकि अगर आप वो टाइम नहीं डिसाइड करोगे ना, तो हमारे अंदर एक ऐसे रहता है कि लेक्चर्स देख रहे हैं तो वो फ्लो तोड़ने का मन नहीं करता कि आज लेक्चर्स ही देख लेते हैं। बट एक्चुअली हमें पीवाईक्यूज के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे हैं और हमें साथ में ही करते हुए चलना है। सो दैट यूज टू वेट। और जब एंड में फिर जब मैंने ऐसे करके मैंने पीवाईक्यूज और सब्जेक्ट कंप्लीट किए, एंड में मेरे पास पीवाईक्यू स्टिल काफी बच गए थे। तो उसके लिए मैंने ऐसे स्ट्रीक बनाई थी कि मुझे, क्योंकि एंड में मेरे साथ क्या था कि सिलेबस अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, अब मुझे पीवाईक्यूज कंप्लीट करने थे। तो मैंने ऐसा किया था कि मुझे दिन में 25 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट सॉल्व करने हैं पीवाईक्यू के। तो अब सिंस मेरे मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट हो गए, लाइक 6-7 हो गए सब्जेक्ट, तो मैं मिक्स पीवाईक्यू कर रही होती थी कि कहीं से भी कर लो, बस 25 क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि कई बार होता है कि एक सब्जेक्ट मुझे याद नहीं है, तो उसका जो टॉपिक याद है 15 क्वेश्चन वहां से कर लिए, 10 क्वेश्चन कहीं और से कर लिए, बट करने सारे हैं। मैंने पीवाईक्यू का हार्ड कॉपी करा लिया था सो दैट मैं टिक करते हुए चलूं और ट्रैक करूं। उससे एक टारगेट रहता है ना, लाइक इफ आई हैव अ टारगेट कि मुझे 25 क्वेश्चन करने ही करने हैं, तो वो फिर थोड़ा बेटर होता है और ज़्यादा कंसिस्टेंसी बिल्ड होती है उससे, क्योंकि तब आप खुद को ट्रैक कर पा रहे हो। क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करते, आपने कितना कवर की ये चीज़ें वो मैटर करती हैं। उसके साथ अभी इस पूरे पीरियड में स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर से लेके पीवाईक्यूज खत्म करने तक मैंने जितने सब्जेक्ट्स किए थे सबका मैं 2 से 3 बार ऑलरेडी रिवाइज कर चुकी थी। सी और डीएसए मैंने बिल्कुल रिवाइज नहीं करा था और मैथ्स भी मैंने इतनी रिवाइज नहीं की थी। बट जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स थे और कुछ बहुत डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होता है, बट मैं वो भी भूल रही थी, तो मैंने रिविजन साथ में ही कर लिया था। मुझे ऑटो खुद से ही लग रहा होता था कि मुझे याद नहीं है और वो पैनिक फील होता था, तो मैं उस टाइम फिर तुरंत नोट्स खोल के रिवाइज कर लेती थी कि फिर खुद बेटर फील होता है कि मैंने जस्ट रिवाइज कर लिया, अब बेटर फील हो रहा है। तो दैट वाज इट। और एंड में जब मैं फिर लेक्चर्स, ये केस आपके साथ नहीं होगा, बट मेरे साथ था कि काफ़ी क्योंकि मैं कहीं और से प्रिपेयर कर रही थी, तो मुझे एंड में रियलाइज़ हुआ था कि मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी। तो फिर मैंने गो क्लासेस के लेक्चर्स एंड में देखना स्टार्ट किया था, तो मैं दिन में ऐसा होता था कि सुबह उठ रही हूँ और रात तक लेक्चर्स ही देख रही हूँ, और उसके साथ फिर मैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रही होती थी। बट फॉर दैट वाज माय थिंग। फॉर यू आई वुड से कि आप ऐसे पीवाईक्यूज और रिवीजन के साथ जब अपना सब्जेक्ट करते जा रहे हो, जब आपके 5 आधा सिलेबस हो जाए, तब आप टेस्ट सीरीज लेकर ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो, ताकि जो सब्जेक्ट आप रिवाइज कर चुके हो अब आप उन पे और प्रैक्टिस कर पाओ। क्योंकि ये सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, और गेट में कुछ भी अगर ट्रिकी आएगा तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर से आएगा, इसमें ऑलरेडी सब कुछ कवर्ड है। क्योंकि ये टॉपिक वाइज होता है, राइट? हर टॉपिक का 1 से 2 टेस्ट हैं। तो अब हर लाइक सब्जेक्ट से तो 15 क्वेश्चन बनाने इज फाइन, बट आप एक टॉपिक से अगर इतने क्वेश्चंस निकाल रहे हो, तो दैट मीन्स कि आपने उसमें जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं ऑलमोस्ट सब कवर किए हैं। तो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। और अगर आप एंड में करोगे तो अगेन टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देना है और फिर से एक बार एंड में भी रिविजन करना है। तो अभी से ही अभी आधा सिलेबस खत्म हो तो उसके बाद फिर ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट देते हुए चलना, ये एक चीज़ है जो मैंने नहीं की थी, बट उससे आई गॉट टू नो कि ये करना चाहिए। तो अगर मैं कुछ डिफरेंटली कर पाती वो ये होता कि मैं पीवाईक्यूज और इन सब रिवीजन के साथ में सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम ही दे पाई थी ये वाले टेस्ट। ओके मैम, और ये था कि जैसे गेट ओवरफ्लो का पीवाईक्यूज के लिए मतलब वहीं से करना चाहिए ना, गेट ओवरफ्लो का जो यस, पीडीएफ है, तो उसको यस, जहाँ यस। से कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे नहीं बन रहे तो उसको कैसे स्ट्रक्चर करना है? जैसे होता है ना कि हाँ ये सारे नहीं बने हैं, तो वो स्ट्रक्चर रहा तो लास्ट टाइम रिवीजन टाइम पे वो काफी हेल्पफुल होते हैं। तो वहां से फिर कैसे हमें नोट्स बनाना चाहिए वहाँ? जी, अगर आपसे कोई जो भी क्वेश्चन पीवाईक्यू के नहीं बन रहे, आप उसको गेट ओवरफ्लो पे सर्च करके कर रहे हो या जैसे भी कर रहे हो, अगर उसका इफ द रीजन इज कि आप वो टॉपिक भूल गए थे या फिर वो फॉर्मूला आपको याद नहीं था, तो दैट तो वो आप ऑलरेडी अपने नोट्स, लॉन्ग नोट्स के रिवीजन में कवर कर लोगे, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट उसके अलावा अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन था जिससे आप कुछ न्यू सीख रहे हो, तो या तो आप वो पूरा सॉल्यूशन लिख के रख लो,
या तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप कोई स्क्रीनशॉट्स ले रहे हो अगेन, तो उसका एक फ़ोल्डर बना के रखना, क्योंकि अगर वो रैंडमली पड़ा रहेगा तो फ़ोन में तो आप उसको दोबारा कभी नहीं देखोगे। अगर फ़ोल्डर है तो स्टिल आप किसी दिन डिसाइड कर सकते हो कि अच्छा आज मैं ये वाले क्वेश्चन्स रिवाइज़ करूँगा, राइट? तो अगर लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है तो स्क्रीनशॉट इज़ ऑल्सो फाइन। जस्ट मेक श्योर कि एक पर्टिकुलर फ़ोल्डर में जा रहा है वो। तो अगेन रियलिटी चेक की मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि अगर आपने इतने सारे क्वेश्चंस मार्क किए हैं, तो आप सारे नहीं देख पाओगे, बट क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता, इतने क्वेश्चंस हैं, आपको नए भी करने हैं, रिवीजन भी करना है, बट स्टिल आई वुड से कि मोस्ट ऑफ देम आप देख पाओगे स्टिल। तो अगर आपका क्वेश्चन जो सपोज सॉल्व नहीं हुआ, अगर वो इसलिए है कि कोई कॉन्सेप्ट आप भूल रहे थे या कुछ नए, तो फिर तो आपको ठीक है, आपने रिवाइज कर लिया, उससे हो जाएगा, उसमें आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर कोई न्यू कॉन्सेप्ट है जो आपने कुछ नया सीखा हो कि ये नए टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कुछ अलग अप्रोच यूज करनी थी, तो वो आप मार्क करके रख लो। मार्क इन द सेंस कि या तो स्क्रीनशॉट ले लो, या तो अपने एक नोटबुक बना लो जिसमें सिर्फ आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हो, राइट? या अपनी जो भी लर्निंग हुई है उस क्वेश्चन से वो लिख रहे हो। सो दैट्स फाइन। और जो मैं मॉक टेस्ट के लिए कर रही होती थी, लाइक ये तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और पीवाईक्यूज का हो गया मेनली, राइट? आपने अभी पीवाईक्यू स्पेसिफिक पूछा। जो मेरा मॉक हाँ टेस्ट हाँ। का था, तो मॉक टेस्ट करते टाइम मैं क्वेश्चंस, क्योंकि उसमें तो नंबरिंग है, राइट? कि 1 to 65 क्वेश्चन है, तो उसमें मैंने लिखा हुआ था कि मॉक 1 क्वेश्चन 23 35 ऐसे कॉमा कर करके लिखे थे। तो उसमें सारे टेस्ट तो नहीं, बट 1-2 में मैंने ऐसा किया था कि मैंने मॉक टेस्ट 5 पे हूँ या जो जो भी हूँ, मैंने मॉक टेस्ट 1 खोला और अपनी नोटबुक खोली, उसमें मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 21 और 35 सपोज़। तो मैं क्वेश्चन 21 पे गई, तो उसका लिंक आता है गेट ओवरफ्लो का सॉल्यूशन का। वो खोला और एक बार वापस देख लिया कि उसकी क्या अप्रोच थी, या खुद से सॉल्व करने का ट्राई किया। तो उस केस में क्योंकि वहीं डिस्कशन पैनल में नीचे ही सॉल्यूशन होता है, तो वो मैं सिर्फ क्वेश्चंस मार्क कर रही होती थी। बट अगर कुछ न्यू लर्निंग है, या फिर वो डिस्कशन पैनल में बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें हैं और आप समराइज़ करके लिखना चाहते हो, देन वो लिख के रख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ऑलराइट, दैट वुड बी माय सजेशन। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ऑलराइट वैभव। So any other questions? This हेलो मैम। Yes, hi. मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कि मैं एक सब्जेक्ट करता हूँ तो वो कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ, फिर कंप्लीट करने के पहले फिर मन करता है कि कोई दूसरा सब्जेक्ट पर स्विच कर लूँ। मतलब ये Hmm. प्रॉब्लम होता है मेरे साथ। मतलब Hmm. फिर इसको क्यों ठीक करूँ, कैसे ठीक करूँ? फिर उसके बाद से ये दिक्कत आ जाती है कि जैसे कि मैं 3-4 दिन बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद से 1-2 दिन के बाद पढ़ता ही नहीं हूँ, साफा मतलब छूट जाता है, तो Hmm. इनकंसिस्टेंसी मतलब मेंटेन नहीं हो Hmm. पाता है। मतलब ये Hmm. प्रॉब्लम है, तो उसको अभी कैसे आप ठीक करूँ? अभी आप कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है इन बीइंग अभी कंसिस्टेंट? तो मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, जिसमें कि सेट सेट थ्योरी कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स लॉजिक कंप्लीट हो गया। ओके, तो अभी तक आपने सिर्फ यस। मैथ्स किया है? यस, मैं मैथ में लीनियर अलजेब्रा कर लिया हूँ और लॉजिक कर लिया हूँ। और कोर्स मैथमेटिक्स लॉजिक सीएस? और सेट थ्योरी का कोर्स मैम 2027 वाला है। नहीं नहीं, मतलब कोर जो सीएस के सब्जेक्ट्स है उसमें से कौन कौन से कोर करते हैं? मैम सीएस का सब्जेक्ट में अभी कोई नहीं किया हूँ, इसके पहले मैं तैयारी कर रहा था, तो उसके हम्म। पहले मैंने एग्जाम दिया हूँ, तो आई मतलब मेरे को सब सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत मालूम है, बट उतना डीप में मालूम नहीं है। इसके पहले ओके मैं कहीं और से मतलब प्रिपरेशन कर रहा था। ओके ओके। सी, यस तो एक चीज तो मतलब आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था कि मैथ्स अगर एक साथ आप कर रहे हो, तो आपका थोड़ा सा फोकस अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि आप चाहे यस कैलकुलस कर लो या फिर लीनियर अलजेब्रा कर लो, है तो वो सारा मैथ्स ही। और आप अगर किसी सब्जेक्ट यस को इतना लंबा टाइम दे रहे हो, आप 1.5 महीने से मैथ्स ही कर रहे हो, क्योंकि टाइम तो लगेगा, उसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं। यस मैथ्स मतलब यस डिस्क्रीट और इंजीनियरिंग कंबाइन करके मैं बोल रही हूँ। तो यस यस मतलब जब 2 महीने खत्म हो गए और आपको लग रहा है मैंने इतने टाइम में सिर्फ मैथ्स किया है और भी मेरे पास 9 यस सब्जेक्ट पड़े हैं, तो आप यस प्रेशर में आ जाते हो। इसलिए मैथ्स यस यस आपको हमेशा टॉपिक वाइज़ करनी चाहिए। आपने अभी तक जितना कर लिया वो ठीक है। अब मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अ, अब आप 2 नए सब्जेक्ट उठाओ, और उसके साथ में जो ओके। मैथ्स के क्या करना है आपको, आपने 2 सब्जेक्ट्स उठाए, मान लो
आई एम जस्ट सेइंग, आप अपना देख लेना आपको कौन से 2 करने हैं। बट सपोज़ यस यस आपने ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट उठाया, ठीक है? तो 2 यस सब्जेक्ट उठाने का क्या रीज़न है कि आप एक अगर पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको दोनों एक ही दिन में करने हैं। आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर्स देख रहे हो, तो आप ऐसा होता है क्योंकि इन डेप्थ होती है काफ़ी, तो अब आप ऐसा हो सकता है कि यस 3 से 4 दिन बाद आप कितना ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे। तो अगर आपका कोई टॉपिक खत्म हो रहा है, जैसे कि आपने मेबी मेमोरी मैनेजमेंट आपका खत्म हो रहा है, तो अब डिस्क और ये सब यस उठाने से पहले आप कुछ दिन डेटाबेस पढ़ सकते हो। फिर आप डेटाबेस का नॉर्मलाइज़ेशन वाला टॉपिक आपने खत्म कर लिया 3 से 4 दिन। फिर आप वापस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आओ, उसका डिस्क वाला टॉपिक कंप्लीट करो, फिर डेटाबेस करो और उसका एसक्यूएल वाला टॉपिक कंप्लीट करो। तो पर एक बार में ओके बहुत सब्जेक्ट भी नहीं उठाने कि बहुत सारे रैंडम इधर-उधर से कुछ भी कर रहे हो, यस यस वो बहुत गलत होगा। तो 2 ही उठाने हैं, 2 से यस ज़्यादा नहीं आपके लिए मैं बोलूँगी। 2 सब्जेक्ट उठाओ और उन दोनों को कंप्लीट करने पे ध्यान दो। और देखो इनकंसिस्टेंसी ऐसा नहीं है जो मैं बोलूँगी सबके साथ ही होता है और ये नॉर्मल है। इनकंसिस्टेंसी यस डेफिनिटली नॉर्मल नहीं है, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। और अगर जितने भी लोगों की रैंक आई है वो इसलिए है क्योंकि वो कंसिस्टेंसी आपको लानी पड़ेगी। वो ईज़ी नहीं होता बट कुछ दिन आपको फ़ोर्सफुली ज़बरदस्ती भी बैठना पड़ेगा। तो मेबी आपकी अगर आप किसी दिन नॉर्मली बैठ रहे हो, तो 3 घंटे में से तीनों घंटे आपको ढंग से समझ आ रहा है। बट जिस दिन आपका मन यस नहीं भी है, उस भी दिन आपको ज़बरदस्ती बैठना ही पड़ेगा क्योंकि आप कंसिस्टेंसी नहीं ब्रेक कर सकते। फिर ऑटोमैटिकली आपकी बॉडी उस रूटीन में आ जाएगी, एक चीज़ तो ये है। तो आप मैथ्स अभी और मत करो, आप बाकी के सब्जेक्ट्स स्टार्ट करो। फिर जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस खत्म हो जाएगा, फिर आप जैसे सेट थ्योरी उठा लिया तो वो खत्म कर लो, बट सपोज़ आपका अब ये यस दोनों मैम, सब्जेक्ट खत्म हो गया बस। हाँ, तो जब ये दोनों नए थोड़ा सा सब्जेक्ट खत्म लास्ट हो ईयर। रहे हैं हाँ, ठीक है। तो ये खत्म करके जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस खत्म हो रहा है, तब फिर आप मैथ्स का कोई और टॉपिक उठा लो जो आपने नहीं किया। वो क्योंकि छोटा-सा ही ओके टॉपिक है, डिस्क्रीट मैथ्स में सारे कॉम्बिनेट्रिक्स के अलावा मोस्टली सब कुछ छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं। फिर जैसे ही खत्म होगा फिर यस और 2 सब्जेक्ट्स उठा लेना। अगर आपको चाहिए तो एक ईज़ी ले सकते हो, ईज़ी मतलब कि जो बहुत ज़्यादा इतना इन डेप्थ नहीं होगा, जैसे आप सी प्रोग्रामिंग ले सकते हो, वो आपको थोड़ा फन लगेगा, डेटा प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर थोड़ा फन लगेगा। यस तो डिजिटल लॉजिक। हाँ, तो एक कोर सब्जेक्ट और एक ईज़ी सब्जेक्ट ऐसा भी लेके चल सकते हो। अब वो डिपेंड करता है आपको क्या टफ और ईज़ी लग रहा है, उस हिसाब से कॉम्बिनेशन बना के चलो, एक यस चीज़ तो ये। बट अब जब आप करोगे ना ओके ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस, तो आप दिन में बहुत नहीं, आप 45 मिनट से 1 घंटा से स्टार्ट कर सकते हो कि इतना टाइम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में देना है। और अभी आप कौन से क्वेश्चन सॉल्व करोगे? पीवाईक्यूज़, जो आप मैथ्स कर चुके हो, पीवाईक्यू। उसमें पीवाईक्यू सॉल्व करो। यस मैम, ठीक है? तो ऐसा भी नहीं है कि मैं 2 कर लिया हूँ, बस सेट थ्योरी हाँ, का भी कर लिया हूँ और हुँ, मैथमेटिक्स लॉजिक का भी कर लिया हूँ। बट अब हाँ, नेक्स्ट कम्युनिकेशंस का सोच रहा था स्टार्ट करने का, तो वही थोड़ा हाँ। 2-3 दिन में ब्रेक्स हो जाते हैं मतलब। हाँ, तो सी जब मैं एक ये टॉपिक सजेस्ट खत्म करूँगी होता है ना हाँ। तो हाँ, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि कॉम्बिनेट्रिक्स करने से पहले आप कोई कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि एक होता है देखो किसी को ओके फ्लो में बने हुए हैं, अगर आपका फ्लो भी ब्रेक हो रहा है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि पूरी मैथ्स इकट्ठे मत करो। आप 2 सब्जेक्ट्स कोई और यस मैम स्टार्ट कर लो। और एक और चीज़ ये है कि जब आप ओके कोई और सब्जेक्ट कर रहे हो तो पीवाईक्यू तुरंत ही मत करो क्योंकि अब देखो आप इतने टाइम से मैथ्स किए जा रहे हो, फिर मैथ्स के ही यस पीवाईक्यूज़ भी मैम कर रहे हो। तो ये थोड़ा नॉर्मल ही है कि आप उससे थोड़ा-सा बर्न्ट आउट हो जाओगे, आपको एग्ज़ॉस्टेड लगेगा कि कितनी और मैथ्स पढूँ। तो उसके लिए फिर यही है कि आप यस मैम अभी जैसे अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस उठा रहे हो, तो ये दोनों सब्जेक्ट के सिर्फ़ लेक्चर पे ध्यान दो, सिर्फ़ उसको समझने पे फ़ोकस करो। जब ये दोनों खत्म हो जाएँगे और ठीक है। उसके बाद मान लो आप डिजिटल लॉजिक और कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट कर रहे हो, तब फिर दिन में 1 से डेढ़ घंटा यस देना ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस के पीवाईक्यू करने में। उससे ओके आपका क्या होगा कि रिवीजन भी होता रहेगा। सपोज़ आपने डेटाबेस में पहले शुरू किया आपने नॉर्मलाइज़ेशन और रिलेशनल डेटाबेस और इन सब से और एंड में फिर क्वेरीज़ और इन सब यस पे एंड हुआ। तो जब आप पीवाईक्यू करोगे ना तो आपका वो स्टार्टिंग वाला जो टॉपिक था नॉर्मलाइज़ेशन का वो भी रिवाइज़ होगा। क्योंकि मैंने तो अभी 2 ही टॉपिक नेम कर पा रही हूँ बट ऐसे सब टॉपिक्स वाइज़ काफ़ी होते हैं। तो जब आप टॉपिक वाइज़ पीवाईक्यू करोगे तो रिवाइज़ होता रहेगा। बट वो आपको लेक्चर्स के ओके साथ में ही करना है। दूसरे ठीक सब्जेक्ट के है, थैंक लेक्चर्स यू के मैम। साथ दूसरे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू ऐसा कॉम्बिनेशन। यस मैम। और मैम तो मेरा कंसिस्टेंसी एक क्वेश्चन। हाँ, यस मैम। मैम मेरा हाँ, एक मैं ये क्वेश्चन था कि बोलो। मैं हुँ, मतलब अराउंड मतलब 2 सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। मैं पहले से ऑल सब्जेक्ट मतलब मैं पढ़ चुका हूँ। मतलब एक बार मैं हाँ, गेट एग्जाम दे चुका हूँ। हुँ, तो ये दूसरी मेरी अटेम्प्ट है, तो मैं बस एक कंप्यूटर नेटवर्क में नहीं पढ़ा हूँ और एल्गोरिथम नहीं, तो और हुँ, सब्जेक्ट में पूरे ही पढ़ा हूँ मतलब।
बस थोड़ा बहुत पीआईक्यू करा था हर सब्जेक्ट का, बट ये कंप्लीट कैसे सब्जेक्ट होगा जल्दी में, क्योंकि मेरा अभी रिसेंटली कॉलेज कंप्लीट हुआ। इसके पहले मैं 2-3 मंथ से मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था। अभी जस्ट मतलब 1 जून से मैंने स्टार्ट किया हूँ पढ़ना। हुँ। तो देखो जो ऐसे आपके हाँ। समरी जो आपके कोर्स हो सब्जेक्ट आपने कर लिए हैं, वो भी आपको रिवाइज़ यस तो आई मैम। थिंक करने ही होंगे अनलेस एंड अंटिल ऐसा है कि आप कॉन्फिडेंट हो कि ये सब्जेक्ट मेरा हो चुका है। नहीं तो आपको अगर रिवीजन करना है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि सपोज़ आपने जितने भी सब्जेक्ट किए उसमें से आपको लगता है ये वाला थोड़ा टफ है, तो आप एक काम करो आप उसके लेक्चर्स या जो अगर कोई ऐसे ऐसे मैराथन लेक्चर या जो कॉम्पैक्ट कोर्स है, वो लेके बैठो और यस सिर्फ मैम। लेक्चर्स को थोड़ा स्पीड बढ़ा के लाइक 1.5 या 2x की स्पीड पे देखो और आप फिर देखो कि क्या ये चीज़ आपको पहले से भी पता थी? देखो अगर पता थी तो आपका रिवीजन हो जाएगा और नहीं थी तो आप यस कुछ नया मैम। सीख लोगे क्योंकि आप नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, उसमें टाइम मत वेस्ट करना बिल्कुल भी। आप लेक्चर्स यस। देख सकते हो, अगर आपको लेक्चर्स देख के लगे कि आप 3 घंटे से बैठे हो और आपको लग रहा है यार ये सब तो मुझे आता ही है और ये नॉर्मल है मतलब मैंने कर रखा है, तो आप फिर उसके पीवाईक्यूज़ करो और अगर आपके ऐसे 3-4 सब्जेक्ट हैं क्योंकि आप सारे सब्जेक्ट्स एक बार कर चुके हो, तो अगर आपको लेक्चर देखते हुए लगता है कि यार ये सब तो मतलब मेरा हो ही चुका है, तो आप सीधा फिर पीवाईक्यू करो सब्जेक्ट का। अगर आपको लेक्चर बोरिंग लग रहे हैं, आपको लग रहा है ऑलरेडी आता है। अगर आपसे पीवाईक्यू 70% नहीं बन रहे मतलब कि आप कुछ तो कमी है और आपको फिर ओके। लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, ठीक है? देख। मतलब ओके। हाँ, अपने नोट्स जो भी आपने बना रखे हैं, एक बार रिवाइज़ करो फटाफट, फिर पीवाईक्यू करो, अगर नहीं बन रहे दैट मीन्स कुछ तो मिसिंग है, वरना आई वुड से कि आप सीधा लेक्चर्स भी वैसे देख ही सकते हो। बिना टाइम मैम। वेस्ट किए, आई डोंट मीन कि बहुत टाइम है, आराम से देखते रहो, बट क्योंकि एक रिविज़न भी आपका हो जाएगा, तो आप देखो मैम आपको खुद यस समझ मैम। आ जाएगा कि ज़रूरत है कि नहीं लेक्चर्स देखने की अच्छा और अगर मैम। ज़रूरत मैम नहीं है लिख। हाँ, 3-4 सब्जेक्ट्स अगर आपको कर लिया आपने और ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप टेस्ट सीरीज़ करना स्टार्ट कर देना या फिर वीकली क्विज़ेज़ भी करते रहो साथ में। सब कुछ थोड़ा-थोड़ा साथ में ही करना पड़ेगा। ओके मैम। तो मैम जॉब में अभी स्टार्ट किया हूँ, मतलब तो उसके हुँ। साथ मतलब मैनेज कैसे कर पाऊँ? ये मतलब ऐसा था थोड़ा, ये इसका आंसर थोड़ा देखो मतलब तो दिक्कत होता, मतलब 5 से 6 4 से 5 ही घंटा दे पाता हूँ, और मैं थोड़ा टाइम सोचता हूँ निकालने के लिए तो वो नहीं हो पाता है, मतलब 6-7 आवर्स के अराउंड मतलब। सी कितने आवर्स आप वही। बैठ रहे हो ये तो बिल्कुल भी मैटर नहीं हाँ। करता, ठीक है? इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके। पर जब आप 2 ही चीज़ें मैटर करती हैं कि जब आप पढ़ रहे हो तब आप कितने फ़ोकस से होकर बैठे हो, ठीक है? तो लाइक मैंने भी जब जॉब के साथ प्रिपेयर किया था तो ऑफ़ कोर्स दिन में कैसे ही पढ़ोगे अगर ऑफ़िस जा रहे हो। तो लेकिन वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई छुट्टी है या फिर वीकेंड है, तो उस दिन आप खुद यस को मैम। ऐसे नहीं कर सकते कि मैं बस 8 ही घंटे पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपको पता है बाकी दिन आपने उतना नहीं पढ़ा। तो उस दिन आपको पढ़ना पड़ेगा, यस मैम। आपको 10-12 घंटे जितना मैक्सिमम है, उतना आपको आपका रूटीन बेसिकली ये होना चाहिए कि आप सुबह उठ रहे हो, आप पढ़ने बैठे, उठते ही पढ़ने बैठ गए, उसके बाद आप सोने तक बस पढ़ ही रहे हो। बस बीच में जो नेसेसरी ब्रेक्स हैं, आपको वो लेने हैं। अगर खाना खाने जाना है या नैप लेना है या थोड़ी देर वॉक के लिए जाना है, तो उन ब्रेक्स के अलावा नेसेसरी ब्रेक्स के अलावा आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो। उसके अलावा सी आपने सब्जेक्ट्स आप बेसिक आपने पढ़ा हुआ है, उतना ही मैटर करता है कि बेसिक ऐसा मेरा नहीं है कि क्लियर है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको एक लेक्चर में बिल्कुल स्टार्टिंग से ही समझना पड़ेगा कि ओ लाइक नो ऑपरेटिंग नो। सिस्टम होता क्या है, ये क्या होता है। आपको बेसिक्स हाँ पता है, यस तो मैम। अब या तो आप लेक्चर्स भी अगर आप 2x पे लेक्चर्स देख रहे हो, तो ऑफ कोर्स जैसे सर ने भी बोला है मूवी की तरह नहीं देखना, बट द पॉइंट इज़ कि आप सिर्फ यस अपना मैम। सारे थॉट्स हटा दो कि गेट में क्या कितना टाइम है, क्या नहीं है। आप सिर्फ लेक्चर खोल के बैठो और अपना मतलब दिमाग ओपन करके बैठो कि आपको चीज़ें समझनी है, ठीक है? और ये आप पे आपकी स्मार्ट स्ट्रैटेजी है क्योंकि देखो इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहला ये कि आप ऐसा हो सकता है कि लेक्चर्स में अभी भी बहुत चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता। तो अभी अगर आप सीधा यस क्वेश्चंस मैम। में घुस जाओ, टे इन सब में घुस जाओ और एंड में आपको रियलाइज़ हो कि यार मेरे तो बेसिक्स ही क्लियर नहीं थे, तो तब तक बहुत लेट हो जाएगा। दूसरी ये चीज़ है कि आपको अब आती हैं सारी चीज़ें और फिर भी आप लेक्चर देख रहे हो तो वो भी आपका टाइम वेस्ट ही है, राइट? तो वो आपको देखना पड़ेगा यस कि मैम। आपको कौन से सब्जेक्ट्स में लेक्चर्स की ज़रूरत है और किसमें नहीं है। वो आप कैसे कर सकते हो? पहला ये है कि रिविज़न करके पीवाईक्यू ट्राई करो और ये सब थोड़ा स्पीड में करना होगा। ये नहीं कि आप 1 महीने रिविज़न करके पीवाईक्यू ही कर रहे हो, फिर आप नया कैसे सीखोगे? थोड़ा-सा आपको स्पीड में करना होगा और बीच में ही देखो करते-करते ही देखो रिवाइज़ करते हुए फिर पीवाईक्यू कर रहे हो, तो पूरा एंड तक मेट वेट मत करो
करो कि एंड में पूरा खत्म हो जाए सब्जेक्ट पीवाईक्यू फिर सोचो। करते करते डिसाइड करो कि आपको लेक्चर देखना है नहीं, या तो आई वुड से कि आप सीधा लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दो। अगर आपको यूट्यूब पे ही मैराथन लेक्चर्स देखने या फिर कोर्स में कुछ ऐसे समरी लेक्चर है या कॉम्पैक्ट कोर्स में। कोर्स है, यस। हाँ तो आप कम्पैक्ट वो दे, कोर्स है। हाँ तो आप उसके लेक्चर्स देख लो। नोट्स तो आपको बनाने नहीं है, आपको बस एक रफ कॉपी पेन और अपना ओपन माइंड लेके बैठना है और चीजें समझनी है। तो अगर आप ऑफिस से आ रहे हो, उसके बाद आप भले ही 4 घंटे दे पाओ, यस मैम। अगर किसी दिन 2 घंटे भी दे पाओ, बट आप ये आपको करना है कि आप डेली कुछ ना कुछ घंटे आप पढ़ रहे हो, ठीक है? और उस 2 से 3 घंटे में आप प्रॉपर समझो। क्योंकि अगर आपने सपोज़ कंप्यूटर नेटवर्क पहले से पढ़ रखा है, तो भी अगर आप लेक्चर्स देखोगे ना, तो उसमें से आपको कुछ तो सीखने को मिलेगा। अगर नहीं तो एट लीस्ट आपका रिविज़न हो जाएगा। क्योंकि आपने अभी बताया आपने पिछले 2 यस। ढाई महीने से पढ़ाई नहीं करी थी, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि यस मैम। आपने पढ़ाई नहीं की और आपको सारी चीज़ें याद हो। तो आप लेक्चर देखो, नो उससे आपका मैम। रिवीजन भी होता रहेगा, राइट? तो भले ही आपने कर रखा हो पहले, यस मैम। तो और ईज़ी है, आपको लेक्चर बार-बार पॉज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हर 1 सेकंड में पॉज़ कर रहे हो या कुछ समझ नहीं आ रहा। किया हुआ है तो आपको लेक्चर्स भी जल्दी समझ आएँगे। थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखो और ये मतलब बिल्कुल फ़ोकस से देखो कि इस बार जब आप लेक्चर देख रहे हो ना, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। क्योंकि अभी आप कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ आएगा तो आप चाहे जितना मर्ज़ी क्वेश्चन कर लो, फ़र्क नहीं पड़ता। और सिर्फ़ कॉन्सेप्ट समझने का भी यस मैम। फ़ायदा नहीं है, क्वेश्चन्स करने हैं। तो वो सीक्वेंस इम्पोर्टेंट है। पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर उसके पीवाईक्यू और सारे क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। ओके। ठीक है। हाँ, थैंक यू यस। मैम। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से इतना ही कहूँगी कि टाइम के हिसाब से पैनिक मत करना कि आपकी जॉब है तो आपके पास टाइम कम है या ऐसा कुछ। अगर आप डेली 2 यस से मैम। 4 घंटे दे पा रहे हो, मतलब मिनिमम 2 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे। उसके अलावा आप यस मैम। 4-5 घंटे अगर पढ़ पा रहे हो, तो और वीकेंड पे लेकिन आपका तो आई वुड से जितनी छुट्टी मिल रही है और जितने वीकेंड्स हैं, उसमें यस आपको मैम। मेहनत करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल ईज़ी नहीं होता कि आप ठीक। सुबह से रात तक पढ़े जा रहे हो, बट सी अगर आपको रैंक लानी है तो आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर हम जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है। बट इतना टाइम काफ़ी है, पूरा वीकेंड और बाकी वीकडेज़ में 2 से 4 घंटे इनफ है अगर आप फ़ोकस से पढ़ रहे हो। ये मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ। यस मैम। ओके। ठीक है मैम। क्योंकि मैम मेरा सब्जेक्ट ऑल मतलब कंप्लीट है, उसका हुँ, नोट्स वोट्स भी है। बस हुँ। दो क्लास जब मैं लेक्चर देखता हूँ तब मतलब बहुत थोड़ा ज्यादा चेंज मतलब दिखता है लेक्चर में। तो वही हाँ, थोड़ा मतलब उस हाँ। नोट्स बनाऊं या ना बनाऊं, नहीं, फिर नहीं नोट्स तो मत बनाना। मैंने बात जो किया नए, दीपक सर से, तो उन्होंने बोला था हाँ, कि नोट्स मत बनाना और उसको यस, मतलब गो थ्रू कर लेना, पीडीएफ से आराम से देख देख यस, लेना यस। 1 वीक में, हाँ, आराम से, और क्वेश्चन सॉल्व करते हाँ। चलना साथ में। राइट, हाँ, तो वही राइट। सही तो बता आपको है। ऑलरेडी सी अच्छा। एग्ज़ैक्टली, क्योंकि देखो लेक्चर देख के डज़न्ट मीन कि जब आपके पास नोट्स हो रिवाइज़, आप जब लेक्चर देखोगे ना, उससे मैंने भी कितने लाइक यूट्यूब पे बहुत लेक्चर्स थे गो क्लासेस के, मैंने सारे देखे थे। तो यार अगर मैं नवंबर में लेक्चर यस देख मैम। रही हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं सारे तो नहीं रिवाइज़ कर पाई थी ना। फिर भी उन लेक्चर से इतना सीखने को मिलता है कि एक तो बिना रिविज़न के बस लेक्चर देखना ही एक अपने आप में एक अचीवमेंट है। अपने आप में आपने एक लेक्चर देखा है तो आपने बहुत कुछ सीखा है। तो तभी मैं कह रही हूँ नोट्स बिल्कुल मत बनाओ। आप सिर्फ़ एक रफ कॉपी, पेन और अपना ओपन माइंड लेके बैठो और नॉलेज के लिए वो रखो कि मुझे सीखना है इस लेक्चर से। अगर कंप्यूटर नेटवर्क का लेक्चर देख रहा हूँ तो मुझे एक-एक टॉपिक समझ आना चाहिए। उस माइंडसेट से देखो, उस टाइम और कुछ मत सोचो। अपने आप फिर आपसे बाद में क्वेश्चन्स भी होंगे, रिविज़न सब कुछ हो जाएगा। तो नोट्स बिल्कुल मत बनाना, इसमें आपको डाउट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने तो सर से भी बात कर ली, सो ऑफ कोर्स यस नोट्स मैम। मत बनाओ, बस यस लेक्चर्स मैम। देखो। लेक्चर्स काफ़ी अच्छे हैं, मैंने भी सब्जेक्ट्स कर रखे थे यस मैम। लाइक प्रॉपर, तो भी मैंने हर एक मैराथन से बहुत कुछ सीखा, इवन दो मुझे लगता था सब्जेक्ट मुझे अच्छे से आता है। तो वो कॉन्फिडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है हाँ, गेट हमको एग्ज़ाम भी के ऐसा लिए ही एंड था दैट मैम। नॉलेज आल्सो। हाँ, हाँ, तो आपके पास तो अभी बहुत यस टाइम है। मैम। मैंने तो नवंबर में रियलाइज़ किया था कि मुझे तो बेसिक्स आते हैं और अभी इतना सारा बचा है। आपका अभी से वो सीन है, तो आपके पास बहुत ओके। टाइम है, बस इसे वेस्ट मत करना। ओके? ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक ऑलराइट, यू। ओके। So a question है that I was wondering where I get to give the subject wise test. तो subject wise test के लिए मैंने I had taken a test series. So I had taken the Go Classes CS test series. उसमें there were topic wise tests, like if there is a subject, then there were 2 to 3 topic wise tests as well as the entire subject
test towards the end. So that was useful, and I think you can make the most of that test series once you complete, at least once you're done with halfway with your syllabus. And halfway means along with PYQs and revision, then is the right time, I think, to take the test series and start with the subject wise and topic wise test. And then in the same test series there would be around 15 to 20 full length mock tests also, which you full length mock test you can start giving in November or whenever your syllabus is done. Okay, so one last question I will take from the chat, if Ajay is there. Okay. So I'm a dropper. I completed C aptitude last year. I started my preparation yesterday. DS and DM, what should be my daily routine so that I can get a rank? I will give 8 hours daily. Can you give a daily routine, like how many hours to study? So there is just one advice for you. Don't count the number of hours that you are sitting. Don't count I've been sitting from this time to this time. So timing should not even be in your head. All you should be caring about is that you are studying all the time. For me, I used to study, like there was no routine as such that I'm waking up at this time. Actually, it was not fixed. There were days when I used to wake up early in the morning and study, and there were days when I used to study till late night. But yeah, yes, a majority of it was that I knew that I understand most of the things in the morning or in the starting hours of my study. So those starting hours of my study, when I have more focus, is what I used to give to watching lectures. And when I used to feel a little tired, I used to solve questions, because for me, I used to play some music, or maybe walk after solving 5 questions. So that helps when you're tired. But if you just pause the video after every 20 minutes and go for a walk, then that won't be very productive. But if you're solving questions, then you can get up and take a round of your room or whatever, and then sit again in 2 minutes. So that way you can form a routine. But as per of number of hours, there is no such routine. And if you are a dropper, honestly telling you, there is just one strategy, that you study all the time. So your target should be completing all 10 subjects. Like if I count maths, like engineering maths and discrete maths as one, and not counting aptitude, there are 10 subjects. So you should be targeting to complete all of this with PYQs, with revision, uh, in by October end. So for that, if you have to give 12 hours a day, give that, because there would be days, maybe if you're sick someday, you catch cold, or you're not feeling good, right? So those days you won't be able to sit for 8 hours. So there's no such fixed thing. For as long as you can focus, just sit. Because there's if I say that you have to sit for 6 hours every morning, now if you're sitting and you don't feel energetic that day, so there's no point just forcing yourself or any such thing. And if there is a day when you are feeling really good, you're feeling like studying, that doesn't mean that you'll stop at 6 hours. So study all the time, just wake up. And as I said, as a dropper, this year is very precious for you. It's not like GATE is a very easy exam, and by just giving 6 hours a day, you'll get a rank. So whether you are preparing with a job or preparing with a drop, there is just one thing, that you study whenever possible. So if you are working and you just have 3 hours a day after coming from home, if you are giving those 3 hours towards your very focused preparation, you will get a rank. And if you are a dropper and you have the entire day, and you give the entire day to studying without any distractions, then that will get you a rank. So it may sound like, how does it work, because everyone is giving uneven time, but that's just the way. The only key is that you're studying whenever it's possible for you. So since you are a dropper and you're asking me to suggest a routine, Ajay, it would be that you wake up, you get on your desk, and till the time you feel sleepy, just keep on studying. Take the necessary breaks, like eating, a nap, or whatever. Don't be on your phone. Let go of it. And just a second. And what else did you ask? So that's about your daily routine. Okay. And then one thing would be that, if you have just started preparing, or you're not done halfway with your syllabus, then the priority is watching the lectures also, because there are a lot of lectures. So if you wake up and that's when you have the most energy, then start with watching lectures, and make sure to solve questions every day. Now if you've just started studying, then
what questions will you solve. So it's very obvious that once you have done one or two subject, then your division of the day should be watching lectures and then solving questions of what you have done earlier and revising whenever possible. So that's the thing. And definitely, again, I would emphasize that 8 hours a day or 9 hours a day doesn't matter. Whatever energy you have, give all of it to studying, because this year is very important. And for anybody who, again, like as someone just asked that they are preparing with a job, I was also not giving 8 hours every day. I was giving like 3 hours for 5 days, and then I don't know how many hours, but like the entire day on the weekends or when I used to take a leave. So it's not about the number of hours, it's just that you have to be very honest to your preparation and you have to be very disciplined. So discipline and consistency matters, not the number of hours. Okay, I hope that answers your question. So thank you everyone. I think we are done with the questions, and I really wish all of you the best of luck for preparing. Yeah, so let's end the session, and if you have any other doubts, then yes, we will be meeting frequently. So great. Good night, guys.